किया था कल. I hope everyone know what is outbreeding devices. So it is just the mechanism to prevent the self-pollination and to ensure the cross pollination. That is called as outbreeding devices. Okay. जिसमें हमने further देखा था, that is the outbreeding devices is further divided into 6 steps. That is the unisexuality, dichogamy, prepotency, heterostyle, hercogamy and self sterility. Okay, जिसमें से unisexuality we have done already. So let's start. So give the heading of outbreeding devices. जिसमें से जो फर्स्ट वन है, that is your unisexuality. कर लिया हम लोग ने. कोई कुछ बोल रहा है? यस बच्चा बोलो. Then is dichogamy. Next, third one is prepotency. Next, prepotency के बाद में आपका आता है heterostyle. heterostyle के बाद में आपका आता है hercogamy. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Self sterility. Okay, so इतना हम लोगों ने देखा था कल. That is the outbreeding devices are nothing but the mechanisms to prevent self pollination and to ensure the cross pollination for bringing the variations. Variations is important or not? Yes, ma'am, it is important. होता है. Yes, for what purpose? For evolution. Yes, for bringing Evolution out the process. evolution. Very good. So इसमें से first unisexuality we have already seen yesterday. That is if the plant will be unisexual, so there is no chances of self-pollination, right? So that's why unisexuality is nothing but one of the mechanism or method of outbreeding devices. Then next जो अभी हम लोग आज देखेंगे that is dichogamy. अब dichogamy में बच्चा लोग क्या होता है? Your dichogamy is further divided into two types. Dichogamy is nothing but the generally कैसा होता है? अभी देखो जैसे for example bisexual आपका flower है, okay? So यहाँ पे आपका stigma, यहाँ पे आपका anther. Okay, this is your gynoecium and androecium. If your flower is bisexual, भी कैसे है? पास में ही present है. अब dichogamy is nothing but the mechanism. I hope everyone is knows कि यहाँ पे भी stigma का भी एक maturity का level होता है, right? कि कब वो ready होगा to accept this pollen grain. और similarly यहाँ पे we are talking about the pollen grain, that is the anther. इसका भी एक certain stage होता है जिसके बाद में dehiscence होता है. याद है dehiscence? What do you mean by dehiscence? The process of releasing of the pollen grains from the pollen sac, correct? तो यहाँ से dehiscence होगा तब जाके pollen grains उड़ के यहाँ पे wind या फिर किसी भी insect या किसी भी help से आप बोल सकते हो pollination से कहाँ पे आएगा? ये stigma पे आएगा, right? So dichogamy में बच्चा लोग क्या होता है? जो maturity का level होता है ना, that is different. For example, अगर अभी आपका स्टिग्मा का जो मेच्योरिटी का टाइम है ना, अगर ये आज मेच्योर हो रहा है तो एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट योर आंसर इज नॉट मेच्योर इनफ. तो जब इसका डेहिसेंस होगा ही नहीं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज ही नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है क्या? No. Okay, so that's why this dichogamy is nothing but the difference of time, that at the time of this stigma mature and this anther mature, दोनों भी अलग अलग टाइम पे mature होता है. That is nothing but the dichogamy. Okay, so in this device anther and stigmas mature at different types. Okay, different time में होता है. Even in a bisexual, since bisexual flower है, दोनों भी present है, but अलग अलग टाइम पे mature होने की वजह से क्या होता है? They are unable to do for self pollination. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Okay, so dichogamy में यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लो. स्टिग्मा एंड शॉर्टकट में लिखो स्टिग्मास एंड एंथर्स. स्टिग्मास एंड एंथर्स
mature at different times, mature at different times in a bisexual flower, in a bisexual flower. सबको समझ में आ गया बच्चा लोग? इट इज वेरी इजी कि आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है, एंथर एंड स्टिग्मा, दे आर मेच्योरिटी का जो उनका टाइम है दैट इज डिफरेंट, सो इसके वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ दिस डाइकोगेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टू पार्ट्स मतलब क्या? इट इज वेरी सिंपल. अभी जैसे हमने देखा ना कि एंड्रोशियम के मेच्योरिटी को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम को क्या, हम लोग वो देखेंगे. सो डाइकोगेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटेंड्री and the next one is protogyny. Okay, अब प्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बिफोर, राइट, पहले. सो प्रोटेंड्री, एंड्री स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम. प्रो मीन्स पहले, गाइनी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम. समझ में आ रहा है सबको? सो प्रोटेंड्री में क्या होगा बच्चा लोग आपका? प्रो मीन्स बिफोर, एंड्री स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम. तो यहाँ पे जो आपका मेच्योरिटी है, यहाँ पे एंड्रोशियम मेच्योर्स बिफोर द गाइनोशियम. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. प्रोटेंड्री में आपका एंड्रोशियम पहले ही मेच्योर हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस गाइनोशियम. और प्रोटोगाइनी में क्या होगा? आपका गाइनोशियम पहले मेच्योर हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर एंड्रोशियम. सो दिस इज वेरी इजी. अभी जो हमने देखा अलग अलग टाइम पे मेच्योरिटी लेवल होता है, बस ये देखना कि प्रोटेंड्री में आपका एंड्रोशियम मेच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम. एग्जाम्पल इज सनफ्लावर. एंड प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम. तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि देयर इज नीड ऑफ राइटिंग दिस डेफिनेशन बिकॉज इट इज वेरी इजी, राइट. आप वर्ड से ही जज कर सकते हो. प्रो स्टैंड्स फॉर बिफोर, एंड्री स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम, हियर गाइनी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगाइनी जिसमें आपका गाइनोशियम मेच्योर्स बिफोर देन एंड्रोशियम, एग्जाम्पल इज ग्लोरियोसा. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. इसके सिर्फ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. दैट इज वेरी इजी. डाइकोगामी मींस नथिंग बट the difference in maturity of androecium and gynoecium, जिसमें that is further divided into two. Protandry means androecium matures before the gynoecium, example is sunflower. Protogyny means gynoecium matures before the androecium, example is gloriosa. That's it. Okay, done this? Yes. Now the next one is prepotency. Potency stands for potential. Okay, pre means again before. So prepotency में अल्टीमेटली बच्चा लोग क्या होता है, यहाँ पे आपका जो pollen grains है ना, दूसरे फ्लावर्स का ज्यादा रैपिडली ग्रो होते हैं एज कम्पेयर टू ओन फ्लावर. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर कर लो सेम बायसेक्सुअल फ्लावर है. ओके, सो यहाँ पे आपका स्टिग्मा, सॉरी दिस इज योर गाइनोशियम और यहाँ पे आपका एंड्रोशियम. ओके, तो यहाँ पे अभी जो पॉलन ग्रेन्स का लैंडिंग होता है ना स्टिग्मा में, याद है आप लोगों को, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, राइट. पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा? जर्मिनेशन. तो वो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से टाइप का पॉलन ग्रेन आया है. ओके, सो प्रीपोटेंसी इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ गाइनोशियम ऑफ द स्टिग्मा, कि यहाँ पे जो दूसरे प्लांट्स का पॉलन ग्रेन है ना, वो पहले ही जर्मिनेट हो जाता है एज कम्पेयर टू ओन प्लांट. समझ में आया? सो pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. दूसरे फ्लावर का pollen grains जल्दी रैपिडली ग्रो होगा. दिस इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी. पोटेंसी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, प्री मींस बिफोर. सो इसमें ऐसा पोटेंशियल है कि दूसरे फ्लावर का pollen grains पहले ही जर्मिनेट होता है. तो लिखो प्रीपोटेंसी में PG, that is pollen grains of other flower, pollen grains of other flowers germinate rapidly than from same flower.
दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे पहले जर्मिनेट हो जाएगा रैपिडली एज कंपेयर टू ओन फ्लावर. एग्जाम्पल इज एप्पल. प्रीपोटेंसी का एग्जाम्पल इज एप्पल. सबको समझ में आया? मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे टाइप का फ्लावर का पोलन ग्रेन आके दूसरे टाइप के फ्लावर के पोलन ग्रेन के ऊपर बैठते हैं और उन लोग जर्मिनेट होते हैं. दूसरे टाइप मतलब बच्चा अभी मुझे एक आप बात बताओ. अभी यहाँ पे अगर आपका रोज का प्लांट है, राइट? अब रोज के Yes. प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अगर जैस्मीन का पॉलन ग्रेन्स आ जाएगा तो वो कैसे जर्मिनेट होगा? इज इट पॉसिबल? ये यहाँ पे जब ये पॉलन ग्रेन्स लैंडिंग होती है ना स्टूडेंट स्टिग्मा पर, तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन करके बोलते हैं. अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड पॉलन एंड पिस्टिल इंटरैक्शन. तो पहले वो रिकॉग्नाइजेशन होता है कि ये प्रॉपर टाइप है कि नहीं है. इफ इट इज जेनेटिकली देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं, तो ही वो आगे जाके जर्मिनेशन होता है. इसे एक मैकेनिज्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन. अब यहाँ पे अगर किसी डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स आ भी गया ना बच्चा लोग, तो वहां पे जर्मिनेशन ही नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस प्लांट इज नोस कि अरे मेरा प्लांट का पॉलन ग्रेन्स तो ये है, दिस इज नॉट ऑफ माय टाइप. सो वहां पे जर्मिनेशन आगे पॉसिबल ही नहीं होगा. समझ में आया? तो मीन्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते. हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं ना. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन से यहाँ पे जो मेल पार्ट है उसको निकाल के, लेकिन इसको क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं. तो बैगिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ पे कोई और भी पॉलन ग्रेन एंटर नहीं कर पाएगा. ओके, तो इसको हम लोग एक बैग में बांध देते हैं. दिस इज दैट इज कॉल्ड एज बटर कप पेपर. उसमें हम लोग इसको बैगिंग करते हैं. फिर हमको जिस भी फ्लावर का चाहिए ना पॉलन ग्रेन, वो हम स्पेसिफिकली खुद से इसमें डस्टिंग करते हैं. समझ में आया? इसमें खुद से Yes. डस्टिंग करेंगे, वापस से उसको बैगिंग कर देते हैं. तो क्या होता है, अभी जैसे आपका स्टिग्मा सब देखो जब वो मेच्योर होता है, ओके, अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? जब उसमें पॉलन ग्रेन्स डस्टिंग करके उसको वापस से रीबैग कर दिया बटर कप पेपर के साथ, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होता है, आपका जर्मिनेशन दिखाता है. दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, और आर्टिफिशियली आप इंसिमिनेशन भी कह सकते हो. ओके. Yes. ओके, सो प्रीपोटेंसी सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Okay, so next one is heterostyly, that is also called as heteromorphy. Heterostyly is also called as heteromorphy. तो जनरली यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हेट्रोस्टाइली में इन सम प्लांट्स, ओके, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पे 2 से 3 टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होके, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, देखो ये आपका एक प्लांट है, एक फ्लावर आपका यहाँ प्रेजेंट है, एक फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तो अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट हो गया. Yes. Yes. डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपका एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है. Yes. तो इस हिसाब से क्या होता है, हिट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम लेवल पे करते हैं. ओके, सो यहाँ पे जस्ट इतना आपको समझ में, इतना सबने लिखा ना? Yes, तो यहाँ ma'am. पे आप पहले लिखो, हिट्रोस्टाइली में लिखो पहले, इन सम प्लांट्स there are 2 or 3 types of flower situated at different level. अब जो आपका 2 से 3 टाइप का फ्लावर्स है ना, अलग अलग लेवल पे सिचुएटेड है, दैट इज नथिंग बट द एंथर एंड स्टिग्मा. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल पार्ट, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एंथर. ओके, दिस इज योर स्टिग्मा. तो यहाँ पे अभी क्या अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट हो गया है ना ये. सो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट द मैकेनिज्म जिससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है. अब यहाँ पे अगर आपका एंथर नीचे, पॉलिन ग्रेन्स नीचे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये नीचे से ऊपर के हेल्प पे तो नीचे से ऊपर तो जाके जर्मिनेट नहीं करेगा ना.
So that's why यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस ज्यादा है as compared to self pollination. So this type of heterostyle is nothing but the position of your anther and stigma at different places that prevents the self pollination. समझ में आया सबको? Say yes or no. हेलो मैम। हाँ बच्चा बोलो. मैम जरा एक बार इसका स्टेटमेंट रिपीट करो ना। ओके, हिट्रोस्टाइली लिखने के लिए पूछ रहे हो या समझने के लिए? मैम लिखने के लिए। अच्छा, लिखने के लिए देखो क्या बोला था मैंने. इन सम प्लांट्स देयर आर 2 or 3 types of flowers. In some plants there are 2 or 3 types of flowers situated at different levels of plant. अब ये जो डिफरेंट लेवल है ना, दैट इज नथिंग बट दी हिट्रोस्टाइली एंड हिट्रोएंथी. मतलब क्या? हिट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है बच्चा लोग? हिट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल. समझ में आया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, याद है? Yes, ma'am. This is heterostyle Yes. and heteroanthy. Again, hetero means different, anthy means anther. So this is the different level. Okay. So in some plants there are 2 or 3 types of flowers that situated at different level. Different level में आपका heterostyle and heteroanthy आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. This prevent या फिर to prevent self pollination. To prevent self pollination. समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Heterostyle is nothing but that is further divided into heterostyle and heteroanthy. That is the position में difference in position of anther and stigma, जिसके वजह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है. एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द क्रॉस पॉलिनेशन. सबको समझ में आया इतना? एंड द नेक्स्ट वन इज हर्कोगैमी. हर्कोगैमी बच्चे लोग क्या होता है? इट इज जनरली अ मैकेनिकल डिवाइस जो कि अगेन क्या करता है? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके. अब इसमें क्या होता है बच्चा लोग? इसमें ना नेचुरल फिजिकल बैरियर आपका प्रेजेंट होता है जो कि 2 सेक्स ऑर्गन को अवॉइड करता है कांटेक्ट करने से. समझ में आया? तो यहाँ पे लिखो. क्या बोल रहे हो बच्चा? किसी ने कुछ बोला? चलो यहाँ पे लिखो. Hello, ma'am. हाँ बच्चा बोलो. मैम वो फिजिकल बैरियर मतलब क्या एग्जैक्टली? फिजिकल बैरियर बताती हूँ. आप लोग पहले लिखिए. हर्कोगैमी में लिखिए, डैश डाल के ऐसे लिखिए. इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस that is I.E, natural physical barrier, that is natural physical barrier is present between two sex organs to avoid contact of pollen with stigma of same flower. To avoid contact of pollen with stigma of same flower. ओके. तो अभी देखो आपने जो लिखा नेचुरल फिजिकल बैरियर मतलब क्या होता है. अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा की बात हो रही है. करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर सेम फ्लावर है, सेम यहाँ पे आपका स्टिग्मा है एंड दिस इज योर एंथर. तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेगा ना स्टूडेंट्स, वहां पे एक नेचुरल फिजिकल बैरियर यू कैन से, मतलब एक
नेचुरली कवरिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेम स्टिग्मा में भी आपके सेम कवरिंग प्रेजेंट है। तो इसके वजह से क्या होगा, अब दोनों में कवरिंग प्रेजेंट है तो दोनों में भी क्या होगा, आपस में वो जब इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे पॉलिनेशन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा में भी आपके कवर है और पॉलन ग्रेन में भी कवर है, जो सेम प्लांट है, जो बाइसेक्सुअल है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल फिजिकल कवरिंग, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये सेम जर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर यही आप तुम किसी अलग फ्लावर का बात कर लो, जैसे विद द हेल्प ऑफ बैट या फिर किसी भी इंसेक्ट ने जो पॉलन ग्रेन्स कैरी किया है, तो यहाँ पे स्टिग्मा में तो फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, नेचुरल कवरिंग, बट पॉलन ग्रेन में है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अभी जैसे ये लैंडिंग होगा, प्लेटफॉर्म होगा, तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द जर्मिनेशन, क्योंकि बैरियर कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली फ्रॉम वन साइड। अब यहाँ पे दोनों ही साइड, तो दोनों ही पैकेट के अंदर पैक है, तो इज इट पॉसिबल फॉर द जर्मिनेशन? नो। समझ में आया सबको? यस So मैम। that is nothing but the natural physical barrier, मतलब अंदर ही अंदर पैक है। अब दोनों ही पैक है तो जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब यही तुम किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन से अगर देखोगे कंपेयर करके, तो वहां पे एटलीस्ट आपका पॉलन ग्रेन जो है क्या है, इट इज अनपैक, यहाँ पे नेचुरल कवरिंग नहीं है, सो देयर इज द चांसेस फॉर पॉलिनेशन, जर्मिनेशन वहां पे होगा आपका। So that is nothing but the हर्कोगैमी। एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हर्कोगैमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या याद रखनी पता है, मैकेनिकल डिवाइस जहां पे आपका नेचुरल कवरिंग प्रेजेंट है, फिजिकल नेचुरल कवरिंग, उसको अंडरलाइन कर लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अभी यहाँ पे आपको कैसे पूछेंगे, डैश इज द आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच द नेचुरल फिजिकल बैरियर इज present to avoid the self pollination. So the correct answer, correct option will be your हर्कोगैमी। ओके, ऑप्शंस में वहां पे आपको डाइकोगैमी, हिट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी, फिर यूनिसेक्सुअलिटी, अलग अलग टाइप का ऑप्शंस रहेगा। समझ में आया बच्चा लोग? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, now the next one, that is the last one, is self incompatibility, that is also called as self sterility। यहाँ तक सबने लिखा हर्कोगैमी तक? मिस हर्कोगाइनी का एक बार रिपीट करो ना, दैट इज हर्कोगैनी नहीं है बच्चा, दैट इज हर्कोगैमी। ओके, सो हर्कोगैमी इज नथिंग बट द मैकेनिकल डिवाइस दैट इज I.T, physical barrier is present between the two sex organs to avoid contact of pollen with stigma of same flower। वापस रिपीट करूं? नो मिस, हो गया। समझ में आ गया ना सबको? हर्कोगैमी Yes. में देखो, इट इज वेरी इजी, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस जहां पे आपका जो पॉलन और स्टिग्मा है, दोनों सेक्स ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, नेचुरल फिजिकल बैरियर। एक साइड से आप कवरिंग याद कर सकते हो, तो नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, जिसके वजह से क्या होता है, वो दोनों कांटेक्ट में आ ही नहीं पा रहे, और कांटेक्ट में आ भी रहे तो वहां पे देयर इज नो चांसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो दिस इज टू अवॉइड कांटेक्ट ऑफ पॉलन विद स्टिग्मा। अब दोनों में भी जब तुम अगर थैली बांधोगे, जब दोनों में भी कवरिंग प्रेजेंट है, आपके पॉलन ग्रेन में भी और स्टिग्मा में, तो जर्मिनेशन कैसे होगा, देयर इज नो चांस। सो दिस इज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया सबको? यस मैम। Yes. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट द जेनेटिक मैकेनिज्म। ओके, अंदर मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से अभी जैसे मैंने आपको कहा ना, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ पे जब आपका पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्शन। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, ये इसको आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, जैसे इसने आइडेंटिफाई किया कि ये सेम फ्लावर का है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये जर्मिनेट आगे नहीं होगा। समझ में आया? So this Yes. is called as self sterility। तो self sterility में लिखो, it is a genetic mechanism, it is a genetic mechanism in which germination of pollen grain of same flower, in which germination of pollen grain of same flower is inhibited, is inhibited।
Example is your tobacco. So this is nothing but the genetic mechanism जहाँ पे सेम टाइप का जो pollen grains है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जर्मिनेशन दिखाता ही नहीं है। वहां पे जैसे आपका pollen grains लैंडिंग भी हो गए स्टिग्मा पे तो आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, आगे जर्मिनेशन ही नहीं होगा। So here we complete with the outbreeding devices. किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? Is everything is clear to everyone? एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। The outbreeding devices is nothing but the mechanism to prevent self pollination and for ensuring the cross pollination. जिसमें से पहला है unisexuality. Since the flower is unisexual, so there is cross pollination. Next is dichogamy. Dichogamy is further divided into protandry and protogamy. Dichogamy is nothing but it means जो मेच्योरिटी का लेवल होता है दैट इज डिफरेंट फॉर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, दोनों भी अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता है जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है जर्मिनेट होने का एज कम्पेयर टू द सेम फ्लावर। देन नेक्स्ट इज हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली में क्या होता है, अलग अलग लेवल पे आपका जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोहिबिटेड। एंड द नेक्स्ट वन इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इज नथिंग बट द मैकेनिकल डिवाइस जहां पे आपका नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है जिसके वजह से सेम प्लांट का पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ स्टेरिलिटी, जहां पे सेल्फ स्टेरिलिटी में इट इज नथिंग बट द जेनेटिक मैकेनिज्म जहां पे अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट इस पे जर्मिनेशन ही नहीं होता है, अगर लैंडिंग भी हो गई स्टिग्मा पे तो आगे जर्मिनेशन ही नहीं होगा। सबको समझ में आए यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. So next topic is our pollen pistil interaction, जो मैं अभी तक आपको बोल रही थी ना, that is the conversation between your pollen grain and the stigma. So pollen pistil interaction. तो नेक्स्ट टॉपिक दो बच्चा लोग, pollen pistil interaction. डन दिए? हेडिंग दिए सब लोग? Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द इंटरैक्शन ऑफ pollen grains with stigma. It is the interaction of pollen grains with stigma. Pollen pistil interaction नाम से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसका होगा, pollen grain का होगा with pistil. pistil में हमारा सबसे पहला क्या आता है, हमारा स्टिग्मा, जिसके कांटेक्ट में आपका pollen grain आता है. So this is nothing but the interaction of pollen grain with stigma. Second point लिखो, it starts with pollination. It starts with pollination and ends with fertilization. मतलब क्या बच्चा लोग, ये कब से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे ये आपका स्टिग्मा है, ओके। सो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन जैसे ही लैंडिंग हुआ, लैंडिंग होने के बाद से इनका इंटरेक्शन चालू हो जाता है। अब ये कब एंड अप होता है, जब आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, यहाँ पे आपका एनाट्रोपस ओव्यूल सिचुएटेड है, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा और किसको करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? तो जर्मिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक आपका क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all the events from deposition of pollen grain. मिस रिपीट करो ना. All the events, EVENTS, all the events from deposition of pollen grain to entry of pollen tube, to entry of pollen tube in ovule is called
pollen pistil interaction. समझ में आया जो अभी मैंने आपको बताया ना, फ्रॉम डिपोजिशन, जैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है यहाँ से लेके टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू योर ओव्यूल, तब तक ये क्या हो रहा है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. लिखा सबने? डन. ओके. नाउ अभी जैसे कि हमने कहा बच्चा लोग, कैसा होता है अभी पॉलिनेशन में, तो देखो बर्ड्स को तो पता नहीं है ना कि कौन से टाइप का पोलन ग्रेन कौन से प्लांट में कैरी करना चाहिए. करेक्ट. ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते, दे गेट अट्रैक्टेड, और जैसे ही वो उन पे सिट होते, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग को भी बताया, पॉलन ग्रेन्स उनके लेग्स में, पैर में उनके, या फिर उनके बॉडी में क्या होते हैं, स्टिक हो जाता है, और जैसे ही वो दूसरे प्लांट में बैठते वो क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है. सो देयर इज द चांसेस, जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि अलग टाइप का पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, डिपॉजिट होता है. ओके. तो यहाँ पे अभी पॉलन ग्रेन को ये नहीं पता होता कि हाँ मैं गलत फ्लावर पे डिपॉजिट हुआ. सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ योर पिस्टिल. ओके. आपका जो पिस्टिल है ना, उसका ये एबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो राइट है या रॉन्ग है. So the pistil has the ability to recognize and accept the right and compatible pollen of the same species. समझ में आया सबको? तो यहाँ पे अभी बहुत अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन आते हैं, बट ये जो पिस्टिल है ना स्टिग्मा, ये इसकी एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये सही है या गलत. अगर ये सही है तो ये आगे इसका जर्मिनेशन अलाउ करेगी, अगर ये रॉन्ग टाइप है तो यहीं पे इसको इनहिबिट कर देगी, या इसका जर्मिनेशन आगे होगा ही नहीं. समझ में आ रहा है सबको? यस. ओके. सो लिखो अभी नेक्स्ट पॉइंट. The pistil has the ability, the pistil has the ability to recognize, जान पहचान कर सके, to recognize and accept, ये ऑथोरिटी किसके पास है, पिस्टिल के पास, to recognize and accept the right or compatible, the right or compatible pollen of same species, pollen of same species. पिस्टिल के पास क्या है, ऑथोरिटी है, राइट है टू आइडेंटिफाई दिस पॉलन, आइदर इट इज सेम टाइप, करेक्ट, कंपैटिबल है या नहीं. अगर सही है तो इसका जर्मिनेशन अलाउ करेगी, इफ इट इज रॉन्ग टाइप तो वो क्या करेगा, वहीं पे डिस्कार्डेड बाय द पिस्टिल. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Thus pollen is of wrong type, thus pollen grain is of wrong type, then it is discarded by the pistil, then it is discarded by pistil. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस. अभी यहाँ पे बच्चा लोग, जो आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, इसका जो सरफेस है ना, दैट हैव द एबिलिटी कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो पॉलन ग्रेन हुआ है वो राइट है या रॉन्ग. अगर वो रॉन्ग है तो ये स्टिग्मा सरफेस जो है आपका, स्टिग्मा का सरफेस, दैट हैज द कैपेबिलिटी कि इनकम्पैटिबल, अगर गलत टाइप का पॉलन ग्रेन है तो यहीं पे रुक जाए, आगे तक उसको बढ़ने ही नहीं देंगे. जो उसका मेन एंट्री पॉइंट है ना यहाँ पे स्टिग्मा पे, यहाँ पे अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इनहिबिट कर देंगे ग्रोथ, ये आगे पॉलन ट्यूब वगैरह ये सब होगा ही नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं होगा. सो द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर has that capability to do not accept the wrong type of pollen grain. Okay, तो लिखो next point. The surface of stigma, the surface of stigma have capability to refuse to refuse
the wrong type of pollen grains. Done. So generally there is a physiological mechanism जो कि operate होता है कि सिर्फ intraspecific, intra means what, सेम, ओके, तो जो सेम स्पीशीज है इंट्रास्पेसिफिक पॉलन ग्रेन्स ही जर्मिनेट हो सके सक्सेसफुली, इसके लिए एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म वर्क करता है कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इज वर्किंग to ensure correct intraspecific, या फिर right RIGST, right intraspecific, intraspecific pollen germination, intraspecific pollen germination. Done? इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Say yes or no. Okay. So बच्चा लोग अभी यहाँ तक तो हमने ये बात किया कि अगर रॉन्ग टाइप हो तो वहीं पे इनहिबिट हो जाएगा। नाउ अगर आपका जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप का हुआ, सो क्या आगे क्या? अब यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे जो पोलन ग्रेन डस्टिंग हुई है तो यहाँ पे स्टिग्मा में ना आपके बहुत सारे फ्रूटी जूसेस वगैरह सब प्रेजेंट है, एसेंशियल केमिकल्स। तो जैसे ये पोलन ग्रेन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा ये सारा का सारा जो भी स्टिग्मा में प्रेजेंट है ना केमिकल्स, that will get absorbed by this pollen grain, जिसको एब्जॉर्ब करके ये क्या होगा, ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ दिखा के ये आगे 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 ने पोलन ट्यूब इसका ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है सबको? अब आगे जाके इसका पोलन ट्यूब ग्रो होने के बाद में आपको याद है जो हमने ओव्यूल देखा था, ओव्यूल के अंदर क्या है हमारा, इम्ब्रियो सैक, करेक्ट? तो इम्ब्रियो सैक में ऊपर कितने सेल्स प्रेजेंट है? 3। क्या नाम था? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल। नीचे कितने सेल्स प्रेजेंट थे? 3। दिस टू साइड वाले का क्या नाम था? सिनर्जिड सेल। एंड दिस सेंटर वन इज कॉल्ड एज एग सेल, फीमेल, करेक्ट? Yes. इसमें आपका दो पोलर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट। यस, नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ, स्टिग्मा में जो भी जूसेस प्रेजेंट थे उसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद में पोलन ट्यूब का ग्रोथ दिखाया कहाँ पे, टुवर्ड्स दिस योर स्टाइल, राइट? स्टिग्मा में लैंडिंग हुई, स्टाइल में पोलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ। अब ओवरी में आपका क्या प्रेजेंट है, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्ब्रियो सैक। तो अभी आपका पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगा, टुवर्ड्स दिस माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे अभी जैसे Yes. आपका पोलन ट्यूब बच्चा लोग एंटर करता है ना, सबसे पहले आपको याद हो फिलीफॉर्म apparatus that helps, that guides the pollen tube to get enters into this synergids. तो यहाँ पे आपका synergids में भी liquid substance and nutritious that is get absorbed by this pollen tube. तो पोलन ट्यूब क्या किया, सबसे पहले इस सिनरगिड में एंटर किया, यहाँ पे इसका क्या जो भी न्यूट्रिशियस फ्रूटी जूस था वो सारा का सारा क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद और ग्रोथ हुआ इसका, फिर पोलन ट्यूब क्या करेगा, सेकंड सिनरगिड में जाएगा, यहाँ पे भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया सबको? अब ये एब्जॉर्बेशन करने के बाद में फिर यहाँ पे आपके पोलन ट्यूब में कितने गैमेट्स कैरी थे, याद है किसी को कुछ? 2 मेल गैमेट्स, याद है? आपका जो पोलन ट्यूब है इट इज कैरिंग द 2 मेल गैमेट्स।
क्या पता, अभी याद नहीं है आप लोग को? अभी लास्ट टाइम ही हुआ था ना बच्चा लोग। Yes, yeah. Generative cell and vegetative cell. The generative cell is further divided to carry for the two male gametes. हाँ बच्चा बोलो, हेलो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हेलो, ओके। तो तभी आप लोग को सुनाई नहीं दिया क्या मैंने जो भी बोला? ओके, सो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? यहाँ पे आपके पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स, राइट? तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अभी हमने कहाँ तक लिखा? अभी लास्ट आपने क्या लिखा? सरफेस ऑफ स्टिग्मा के बारे में लिखियो ना, नहीं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, राइट? Yes, ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द करेक्ट टाइप या फिर कंपैटिबल पॉलन water and nutrients, water and nutrients from stigma। सबसे पहले पॉलन ग्रेन की डस्टिंग स्टिग्मा पे हुई है ना बच्चा लोग, दैट्स व्हाई आपके स्टिग्मा में जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, इट इज गेट एब्जॉर्ब बाय पॉलन ग्रेन। ओके, सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्टिग्मा and germinate and produce pollen tube, germinates and produces pollen tube। so this is your stigma। सबसे पहले pollen ग्रुप ने एंट्री की यहाँ पे जो भी आपका वाटर और न्यूट्रिशन वाला जूस था, सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब कर लिया? आपका पॉलन ग्रेन सारा न्यूट्रिएंट्स और सारा वाटर एब्जॉर्ब करके जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन इज नथिंग बट दो जो आपका पॉलन ग्रेन ऐसा है ना, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, जो कि आगे जाके क्या होगा? बड़ा पॉलन ट्यूब बनाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो यहाँ पे आपका कंपैटिबल पॉलन जो था उसने वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया, देन जर्मिनेट किया, देन पॉलन ट्यूब बनाया। नेक्स्ट इट्स ग्रोथ, नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल, थ्रू स्टाइल। स्टाइल याद है ना सबको? स्टिग्मा के बाद वाला पार्ट, दैट इज स्टाइल, इन बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा। थ्रू स्टाइल is determined by specific chemicals, is determined by specific chemicals। डन। अब अभी जो तभी मैंने आप लोग को बताया सिर्फ पूरा वही लिखना है। पॉलन ट्यूब डस्टिंग हुई, जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब बढ़ेगा, स्टाइल से ग्रोथ होते होते कहाँ एंटर करेगा? द पॉलन ट्यूब इज फाइनली पुश इनटू योर ओव्यूल, और कहाँ तक पहुंच जाएगा? एम्ब्रियो सैक तक। तो लिखो, द पॉलन ट्यूब is finally pushed through ovule and reaches to embryo sac and reaches the embryo sac। Miss, repeat. अभी वाला सेंटेंस, द pollen tube is finally, the pollen tube is finally pushed, pushed through the ovule
pushed through ovule and reaches to the embryo sac and reaches to the embryo sac. Done? Yes. नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो आपका टिप है ना बच्चों लोग पॉलन ट्यूब का, वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में? synergids. यस, सिनर्गिड्स में वो सबसे पहले एंटर करेगा, जहाँ पे आपका फिलीफॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। याद है सिनर्गिड्स में? Yes. जो Yes. कि क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा कि हाँ तुम चलो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे जो भी सिनर्गिड में न्यूट्रिशन है इट विल गेट एब्सॉर्ब बाय पॉलन ट्यूब। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब, द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब enters into one of synergids, enters into one of the synergids and then ruptures to release the contents, and then ruptures to release the contents. सिनरगिड्स में जैसे ही उसका टिप एंटर किया, सिनरगिड क्या हो गया, रप्चर हो गया, राइट? तो सिनरगिड में जो भी कंटेंट है सारा का सारा रिलीज हो जाएगा एंड इट विल गेट एब्सॉर्ब बाय द पॉलन ट्यूब। समझ में आया सबको? नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, pollen pistil interaction, pollen pistil interaction plays important role in sexual reproduction and seed formation. अंडरलाइन कर लेना दोनों वर्ड, pollen pistil interaction plays important role in sexual reproduction and seed formation. Done? अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मेथड पॉलन जर्मिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द शुगरी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनटू योर स्टिग्मा, करेक्ट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हिबिस्कस प्लांट शू फ्लावर सब लोग ने देखा होगा, राइट? उसमें येलो येलो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, आपको पता है? जब आप उसको हाथ लगाओगे ना तो वो आपके हाथ में डिपॉजिट हो जाते हैं येलो येलो, दैट आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन। Yes, ma'am. वो येलो पाउडरी सब्सटेंस। तो जैसे ही वहां पे क्या होता है बच्चा लोग पता है, अभी स्टिग्मा में आपका क्या प्रेजेंट है, नथिंग बट द शुगरी सब्सटेंस, ठीक है, जिसको पॉलन ग्रेन क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ग्रोथ दिखाता है। तो इवन यू कैन ग्रो दिस पॉलन ग्रेन, आप वो हिबिस्कस का जो पॉलन ग्रेन है पाउडरी येलो सब्सटेंस, जब उसको लेके शुगर सोल्यूशन में डालोगे ना, दैट इज सुक्रोज, सुक्रोज के सोल्यूशन में डालोगे तो इट विल शो यू पॉलन ट्यूब, पॉलन जर्मिनेट हो जाएगा वहां पे। So even with the help of sucrose we can germinate the pollen in vitro condition, in vitro condition। vitro मतलब क्या, आर्टिफिशियल, समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग तरीके से भी हम लोग पॉलन यहाँ पे जर्मिनेट कर सकते हैं, जिसमें जैसे हम लोग बोरिक एसिड ऐड कर देंगे तो इट एक्सिलरेट्स द पॉलन जर्मिनेशन, मतलब और फटाफट आपका पॉलन जर्मिनेट होगा। समझ में आया? So next Yes. point लिखो, with the help of sucrose, with the help of sucrose we induce a pollen germination, with the help of sucrose we induce pollen germination in vitro condition, in vitro condition, and addition of boric acid, and addition of boric acid, BORIC, boric acid, it faster the pollen germination reaction, या फिर it accelerates the pollen germination, और फटाफट हो जाता है आपका pollen germination।
the addition of boric acid accelerates the pollen germination. Done? हो गया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. Okay, so यहाँ तक सबको समझ में आया. So here we done with the pollen pistil interaction. I hope सबको अच्छे से समझ में आया. So pollen grain का स्टिग्मा पे डस्टिंग से लेके पोलन ट्यूब का ग्रो होना, ओव्यूल के अंदर जाना, एम्ब्रियो सैक में अंदर जाके सिनर गिड को रप्चर करके एब्जॉर्ब करना, पूरा का पूरा आपका पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन इन्वॉल्व है. समझ में आया? सो नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. That involves two techniques. एक है emasculation in case of bisexual flower and the another one is bagging technique. जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, ये भी लिखो मत, सिर्फ artificial hybridization heading दो. So artificial hybridization is nothing but the major approaches used in crop improvement. Crop improvement के लिए artificial hybridization बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है. यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा लोग, ओनली द डिजायर्ड, जो पोलन ग्रेन आपको चाहिए ना डिजायर्ड टाइप का, आप वो पोलन ग्रेन को खुद अपने से क्या करते हो, डस्टिंग करते हो. मैंने तभी आपको बताया ना, अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे आपका गाइनोशियम एंडोशियम दोनों प्रोड्यूस है, राइट. सो इमैस्कुलेशन मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, दैट इज एंथर, इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. समझ में आया? So, अगर आपका फ्लावर बायसेक्सुअल है तो पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट दैट इज ऑफ द एंथर, देन उसको बैगिंग करेंगे. क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे विद बटर कप पेपर. बटर कप पेपर के हेल्प से उसको बैगिंग कर देंगे. आफ्टर दैट अभी आपका डिजायर्ड टाइप का, जो टाइप का आपको पोलन ग्रेन चाहिए, आपको बैगिंग निकालोगे, वो बैग निकाल के यहाँ पे डस्टिंग करोगे वो पोलन ग्रेन का, एंड अगेन यू विल जस्ट रीबैग इट. ओके, रीबैग कर दोगे सो दैट नो अनदर टाइप ऑफ पोलन ग्रेन कैन एंटर इनटू दिस. तो इससे क्या होता है, जो डिजायर्ड टाइप का आपको चाहिए, ये पॉलिनेशन यहाँ पे कैरिड आउट होगा. दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. सबको समझ में आया यहाँ तक? Am I clear to everyone till here? Yes, ma'am. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो आप हेडिंग दी हो उसके बाद में वहां पे नीचे पॉइंट्स लिखो कुछ. वन ऑफ द मेजर अप्रोच, फर्स्ट पॉइंट लिखो, वन ऑफ द मेजर अप्रोच इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. वन ऑफ द मेजर अप्रोच इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, only desired pollen grains, desired मतलब मनपसंद का. ओके, only the desired pollen grain are hand pollinated. क्या? रिपीट करो ना सेकंड पॉइंट. ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, only the desired pollen grains, only the desired pollen grains are pollinated and used for fertilization. And used for fertilization. समझ में आया फर्स्ट सबको? पॉइंट एक बार रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई. ओके, फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपने जो हेडिंग दिया है ना, वहां पे उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट दैट इट इज, मतलब वन ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच used for crop improvement. One of the major approach used for crop improvement. Second point, only the desired pollen grains are pollinated and used for fertilization.
समझ में आया? यहाँ तक हुआ लिख के? हेलो मैम। यस हाँ बच्चा बोलो। मैम एक बार बैगिंग एक्सप्लेन करो ना, बैग नहीं समझा। हाँ हाँ लिखना है अभी, डोंट वरी, लिखना है अभी। अभी यहाँ पे वापस नीचे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन लिख के दो ये बाइफर्केशन लिखा हो, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. So generally your artificial hybridization involving two, emasculation and bagging. इसमें भी लिखना है, ओके? दिए ऐसा दो बाइफर्केशन. So emasculation में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन bisexual flower, in bisexual flower. So emasculation क्या होता है? In bisexual flower, the removal of anther, the removal of anther from the flower, the removal of anther from the flower before anthesis, before anthesis, anthesis. anthesis मतलब क्या होता है? आपका जो anthers है वो mature हो जाता है. So before maturation of anthers, removal of anther from the flower is called as emasculation. इतना समझ में आया सबको? यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैगिंग. तो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपकी दो टेक्निक इन्वॉल्व है. इमैस्कुलेशन में रिमूवल कर दिया, एंथर्स को निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप. फोर्सेप की मदद से एंथर को निकाल के बैगिंग कर दिया. बैगिंग मतलब यहाँ पे लिखो, आफ्टर इमैस्कुलेशन, बैगिंग में लिखो फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर इमैस्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ बटरकप पेपर, with the help of buttercup paper, the flower is bagged. The flower is bagged. Done? इतना समझ में आया? नेक्स्ट बैगिंग में सेकंड पॉइंट लिखो, the desired type of pollen grains are dusted. Desired type of pollen grains are dusted on the stigma of a flower, on the stigma of a flower, and rebagged, and rebagged and rebagged. समझ में आया बच्चा लोग? जो बैगिंग का पूछ रहे थे अभी समझ में आया बच्चा आपको? यस मैम. Okay, so artificial hybridization, generally those steps involve emasculation, that is nothing but the removal of your male part, that is anther, before anthesis, मतलब before the maturation of your anthers. उसके बाद में उसको with the help of buttercup paper से bagging कर दिया जाता है. फिर जो भी desired type का आपका pollen grain है उसको dusting किया जाता है ना, again rebag करके उसको वापस से छोड़ दिया जाता है for the further development. समझ में आया सबको यहाँ तक? यस मैम. So here we are done for today's lecture. Now the next topic is double fertilization, that will be seen next lecture. Okay? Thank you so much everyone. Just be safe at your home. Take care.
Ma'am, can